Chapter 1, Nutrition in Plants. Now in this chapter, we are going to study about two topics, modes of nutrition in plants and replenishing nutrients in the soil. Now before we discuss about these topics, modes of nutrition in plants and replenishing nutrients in the soil, let us discuss a little bit about what we have already studied in the previous standard. Okay, so we have already studied there are two types of things, like there are living things and non-living things. Now what are living things? Living things are those which can breathe, eat food, reproduce, grow, move from one place to another, excrete waste, and they are made up of cells. On the other side, non-living things, they do not breathe, they do not eat food, they do not reproduce, they do not grow, they cannot move from one place to another, means they cannot do locomotion by their own, they do not excrete waste, and cells are absent in them. Okay, so this is what we have already studied. Now the examples, here we are going to specifically discuss about living things. The examples of living things are plants, animals, including humans. Okay. So as we know that living things eat food. Okay, they require food. Food gives them energy. They get energy from food. खाने में से उनको एनर्जी मिलती है, इसलिए उनके लिए खाना जरूरी होता है. Plants do not eat food, but they produce food. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. So now this divides living things into two groups. Okay, so there are plants and there are animals. So plants are called producers and animals are called consumers. Now, why plants are called producers and why animals are called consumers? Now, green plants, okay, we are talking about specifically green plants. Green plants produce their own food by the process of photosynthesis. Hence, they are called producers. Okay, green plants अपना खाना खुद बनाते हैं photosynthesis process से. Now ये photosynthesis process क्या होता है वो आगे हम चैप्टर में we'll study it later on. Okay, but here we know that green plants produce their own food by the process of photosynthesis, इसलिए उनको producers कहा जाता है. While animals, they are called consumers. उनको consumers इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. They cannot make their own food. They depend on green plants or other animals for food. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो या तो ग्रीन प्लांट्स से फूड लेते हैं, अदरवाइज वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और इस तरह से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, उनको एनर्जी मिलती है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंज्यूमर्स. ओके, सो हियर वी कैन सी that there are two types of living organism, one which can produce their own food, एक जो अपना खाना खुद बनाता है, and the other which cannot produce their own food, that is the consumers. Okay, so basically we know that all living things, whether it is plants, animals or humans, require energy to stay alive and to carry out various life processes like growth, respiration, excretion, reproduction, etc. Okay, मतलब plants हो, animals हो या फिर humans हो, इन सभी को जिंदा रहने के लिए और अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है. ओके, सो फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी आती कहाँ से है, उनको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ओके, वेल दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड. उनको ये एनर्जी खाने में से मिलती है. ओके, खाना खाने से या फिर खाना
प्रोड्यूस करने से, खाना लेने से, यूज करने से प्लांट्स और एनिमल्स को उसमें से एनर्जी मिलती है. ओके, सो हियर कम्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ पे आता है हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस. नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता क्या है? सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म takes in food, uses it for its growth and to perform other vital activities. न्यूट्रिशन का मतलब, न्यूट्रिशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म खाना लेता है, उसको ग्रोथ और दूसरे नेसेसरी ज़रूरी एक्टिविटीज करने के लिए उस खाने का यूज करता है. ओके, नाउ व्हाई द नेम ऑफ द प्रोसेस इज न्यूट्रिशन? इस प्रोसेस का नाम न्यूट्रिशन क्यों है? It is because we get nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals from this food. Okay? इस प्रोसेस का नाम न्यूट्रिशन इसलिए है क्योंकि खाने में से हमें ये अलग अलग टाइप के ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हमें खाना खाने से मिलती है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम दिया है न्यूट्रिशन. तो इस चैप्टर में हम लोग खास करके सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे. ओके, इन दिस चैप्टर वी आर पर्टिकुलरली गोइंग टू स्टडी अबाउट ओनली प्लांट्स, कि प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है. हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिशन? ओके, तो ग्रीन प्लांट्स आर द वंस विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट की मदद से. ओके, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं. बट देयर आर सम प्लांट्स विच गेट देयर फूड बाय अदर मीन्स. ओके, ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उन्हें न्यूट्रिशन लेने के लिए कोई डिफरेंट अलग तरीका यूज करना पड़ता है. ओके, सो इसलिए देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. दो तरीके हैं न्यूट्रिशन गेन करने के. सो देयर आर टू वेज ऑफ न्यूट्रिशन और टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Now what is the meaning of autotrophic nutrition? Auto means self. Auto का मतलब होता है self, मतलब खुद. And trophy means nutrition. Okay, तो self nutrition, autotrophic means self nutrition, मतलब अपना खाना खुद बनाना. And heterotrophic nutrition, hetero means other and trophy means nutrition. Okay, other nutrition मतलब किसी और से न्यूट्रिशन लेना. ओके, तो ये दो टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, दो तरीके हैं, दो वेज है न्यूट्रिशन गेन करने के. एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो जैसे कि हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, सो दे फॉलो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. ओके, सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज. उसका डेफिनेशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, एक ऐसी प्रोसेस, द वे ऑफ न्यूट्रिशन, जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. इसके एग्जाम्पल्स है ग्रीन प्लांट्स. खास करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. ओके, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है या फिर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है और प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है. ओके, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब किसी और से न्यूट्रिशन लेना,
गेन करना, टू टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म मतलब या तो ग्रीन प्लांट्स या फिर एनिमल्स. ओके, टू टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम green plants or other animals. So the definition of heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organism depend on other organism directly or indirectly for food. Okay, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वे ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो खाना लेता है. वो ऑर्गेनिज्म या तो ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं या तो फिर दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं. ओके, तो इस तरह से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ग्रीन प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. हेटेरोट्रॉफ्स या फिर उन्हें कंज्यूमर्स भी कहा जाता है. ओके, सो दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स. इसलिए और हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं they follow heterotrophic nutrition. Okay, because they cannot produce their own food. That's why heterotrophs or consumers follow heterotrophic nutrition and autotrophs or producers follow autotrophic nutrition. So इस तरह से ये दो टाइप्स के अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दो वेज है न्यूट्रिशन के, अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेने का तरीका है. ओके, न्यूट्रिशन की जरूरत सभी को होती है. सभी तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी प्लांट्स है, सभी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है क्योंकि उसमें से उसको एनर्जी मिलती है. बट सबका न्यूट्रिशन लेने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है. ओके, सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. कोई कोई अपना खाना खुद बनाते हैं और कोई कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए. ओके, तो इसलिए ये दो तरीके हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, सो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक खत्म होता है. So here we finish the first topic of our chapter. In our next video, we will study about photosynthesis process.